السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول زلاؤٹ پر شگفتہ کنول کے ناول ہماری عیدی کے ساتھ، اور اس کی فرمائش مجھ سے کی تھی عبداللہ نے۔ چونکہ یہ ایک مکمل ناول ہے، شارٹ ناول ہے، تو میں نے کہا کہ پہلے یہ فرمائش پوری کر دیتی ہوں، اس کے بعد اور بھی فرمائشیں ہیں جو مجھے پوری کرنی ہیں، جیسے کہ دشمن جہاں اور بیلی راجپوتوں کی ملکہ۔ تو میں ہوپ فلی اس کے بعد ان دو ناول کو ایک ساتھ کنٹینیو کروں گی، کوشش تو میں یہی کروں گی کہ دونوں کو کنٹینیو کروں ساتھ ساتھ۔ اور واپس آ جاتے ہیں ہمارے اس ناول پر۔ ناول کا نام ہے ہماری عیدی، اور یہ عید اسپیشل ناول ہے، اور لیکن عید کا بھی کوئی سین نہیں ہے، نہ عید آئی ہے نہ آنے والی ہے۔ پھر بھی چونکہ یہ ایک ریکویسٹ ہے تو جلدی سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ یار 10 دن گزر گئے مگر کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ دیوار کے پار ساتھ والے گھر میں بیٹھے منیب نے اسے میسج کیا، تمہیں کیا یہ سیز فائر اچھا نہیں لگ رہا؟ کیوں جا رہے ہو کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی لوگوں کو بنا ٹکٹ کا فری شو دیکھنے کو ملے؟ اس نے پلر سے ٹیک لگاتے ہوئے گھورنے والے ایموجی کے ساتھ جوابی میسج ٹائپ کر کے بھیجا۔ کل پروین خالہ پوچھ رہی تھی کہ تمہاری ماؤں کی صلح ہو گئی کیا؟ کتنے ہی دن ہو گئے ان کے ایجاد کردہ اور دھواں دھار قسم کے الفاظ اور طعنے نہیں سنے۔ دوبارہ سے منیب کا میسج آیا تو اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے گھورتے ہوئے وہ دوبارہ سے ٹائپ کرنے لگی، تو تم پروین خالہ کی انٹرٹینمنٹ کا بندوبست کرنا چاہ رہے ہو؟ ہاں ہاں ہاں۔ دراصل دادی بھی پریشان ہو رہی ہیں، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ذرا اپنی ماں اور ماسیوں کی دونوں کی زبانیں تو چیک کر، کہیں رکھ کر بھول ہی نہ گئی ہوں۔ اتنے دن ٹلنے والی چیز تو نہیں ہے، خدا خیر ہی کرے۔ منیب اب کی بار زور سے ہنسا۔ پاس بیٹھی سعیدہ دادی نے اسے دیکھا اور پھر سامنے جہاں زارا بھی ہاتھ میں موبائل لیے بیٹھی تھی، نفی میں سر ہلاتی انہوں نے منیب کے ہاتھ سے موبائل پکڑا۔ سارا دن اسکول میں تم دونوں ساتھ ہوتے ہو، باقی کا وقت یا تو یہ ادھر ہوتی ہے یا تو ادھر چلا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی تم لوگوں کی باتیں رہ جاتی ہیں۔ عصر کی اذان ہو گئی ہے، چل جا کر نماز پڑھ۔ خالی روزہ رکھ کر کیا ہوگا اگر نماز نہیں پڑھی تو؟ انہوں نے موبائل تکیے کے نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ جی چلا جاتا ہوں، مگر یہ تو مجھے دے دے۔ وہ آگے کو ہو کر تکیے کے نیچے سے موبائل نکالنے لگا۔ یہ ادھر ہی پڑا ہے، میں کھا نہیں جاؤں گی، آ کر لے لینا، سعیدہ دادی نے کہتے ساتھ ہی اپنی لاٹھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے اٹھنے میں ہی عافیہ جانی اسے بھیج کر وہ زارا کی جانب متوجہ ہوئیں۔ چل نی کڑیے، نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ کر نماز پڑھ، سارا دن اسی موئے میں گھسے رہتی ہے۔ انہوں نے زارا کو آواز لگائی۔ وہ چونکہ دیوار سے 15-20 قدم کے ہی فاصلے پر بیٹھی تھی، اس لیے اس تک ان کی آواز بآسانی پہنچ گئی۔ وہ جھٹ سے موبائل رکھتی اٹھ گئی۔ 50 گھروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں، شہر سے خاصا دور ہونے کی وجہ سے خالص دیہاتی ماحول، وہی کچی سڑکیں جو بارش کے موسم میں کسی تالاب کا منظر پیش کرتی ہیں، سرسبز کھیت، بغیر کسی ملاوٹ کے گھر کی بنی خالص اشیاء اور بیر یا خالص لوگ۔ جہاں خلوص ہو وہ جگہ امن کا گہوارہ ہوتی ہے۔ یہاں بھی یہی صورتحال تھی، مگر اس گاؤں میں 2 گھر ایسے بھی تھے جن کے پچھلے 20-25 سالوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ یہ دشمنی کسی زمین یا جائیداد کے مسئلے پر مردوں کے درمیان نہیں بلکہ عورتوں، 2 سگی بہنوں کے درمیان تھی، جس کو کئی سالوں سے وہ بڑی دلجمی اور ذمہ داری سے نبھاتی چلی آ رہی تھی۔ آج سے 20 سال پہلے جب سعیدہ دادی اور ان کے شوہر نور حسن نے اپنے بیٹوں اسد حسن اور ظفر حسن کی شادی اپنی دونوں بھتیجوں سے کرنی چاہی تو ظفر حسن جو بڑے تھے، انہوں نے ریحانہ جو انہی کی بڑی تھی سے شادی سے انکار کر دیا اور ریحانہ سے چھوٹی یاسمین سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو مجبوراً انہیں بڑے کی شادی چھوٹی سے اور چھوٹے کی بڑی سے کرنی پڑی۔ اسی بات سے ریحانہ کے دل میں بہن کے خلاف گرہ پڑ گئی اور تب سے ہی دونوں میں 36 کا آنکڑا رہنے لگا۔ شروع میں تو بات صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی ٹلنے لگی، مگر آہستہ آہستہ یہ چھوٹی باتیں بڑا جھگڑا اختیار کرنے لگیں، کیونکہ یاسمین نے بھی جواب دینا شروع کر دیا تھا۔ پھر تو آئے روز گھر میں ایک تماشا سا لگا ہوتا۔ گھر کے لوگ حیران تھے کہ اچانک سے ہوا کیا ہے۔ حالانکہ نور حسن کے بھائی بھابھی کے ایک حادثے میں انتقال کے بعد
دونوں بہنیں ان کے یہاں ہی پلی بڑھی تھیں، بچپن سے جوانی تک دونوں کا پیار مثالی رہا۔ سوائے سعیدہ دادی کے کوئی بھی ان دونوں کے آپس کی دشمنی کی وجہ سے واقف نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے شوہر نور حسن سے مشورہ کر کے دونوں کو الگ کرنے کا سوچا۔ ایک ہی گھر میں درمیان میں دیوار کر کے دونوں کو الگ کر دیا۔ دیوار کیا تھی؟ بس ایک قسم کا بارڈر سمجھیں، جس کے آر پار دیکھا تو جا سکتا ہے مگر داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ بمشکل گھٹنوں تک آتی دیوار سے ایک گھر سے دوسرے گھر میں آسانی سے آیا جایا جا سکتا تھا۔ ریحانہ نے دیوار کی اونچائی کے معاملے میں شور مچانا چاہا مگر سعیدہ دادی کی ایک ہی دہاڑ سے دبک گئیں۔ دونوں کی دشمنی بھی خاصی دلچسپ تھی۔ جہاں دونوں ہمہ وقت ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کو تیار رہتی، وہیں اگر کوئی ان دونوں کے بارے میں کچھ بول دیتا تو وہ مرنے مارنے پر تل جاتی۔ اگر ایک بیمار ہوتی تو دوسری بہانے سے اس کی عیادت کے لیے آری جاتی یا پھر کسی کے ہاتھ کچھ بھجوا دیتی۔ جیسے کچھ ماہ پہلے یاسمین کی طبیعت خراب تھی تو زارا خود سے ہی کھانا پکا رہی تھی۔ ریحانہ کو پتہ چلا تو وہ تب تک ان کے گھر کا کام کرتی رہی جب تک وہ مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو گئی۔ ایسے ہی حسیب کے ایکسیڈنٹ کے موقع پر یاسمین ہسپتال پوچھنے گئی تو کچھ رقم بہن کے مٹھی میں دے آئی کہ ضرورت پڑ سکتی ہے، ایک دوسرے کی جانی دشمن ہونے کے باوجود۔ حیرت انگیز طور پر دونوں کی ہی ایک دوسرے کے بچوں میں جان تھی۔ ریحانہ کے 2 بیٹے حسیب اور منیب، جبکہ یاسمین کی ایک ہی بیٹی زارا تھی۔ حسیب اور خاص طور پر منیب اگر یاسمین کا چہیتا تھا تو زارا ریحانہ کی لاڈلی تھی۔ شروع میں دونوں ہی ایک دوسرے سے چھپ کر بچوں کو پیار کرتی مگر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے اور دونوں گھروں میں آنے جانے لگے تو سر عام لاڈ اٹھاتی۔ دونوں ہی بچوں کو ملنے سے نہیں روکتی تھی۔ اگر کوئی پوچھتا کہ اتنے جھگڑے میں کیوں بچے کو اتنی جھوٹ دے رکھی ہے، بلکہ ایک بار تو خود دادی نے بھی پوچھ ہی لیا تھا، تو ان کی اپنی ہی منطق تھی بقول ریحانہ کی وہ اس لیے نہیں روکتی کہ یاسمین کو بیٹوں کی کمی محسوس نہ ہو، اور ایسا ہی کو جواب یاسمین کا بھی تھا کہ ریحانہ کی بیٹی نہیں ہے تو اس کو بھی تو بیٹی کا شوق ہوگا۔ ریحانہ بڑے بیٹے حسیب کی شادی 1 سال قبل ہی دادی کی نند کی پوتی سے کر چکی تھی۔ سائرہ بھابھی کافی ملنسار اور خوش مزاج تھی، بقول دادی کے وہ اچھی بہو ثابت ہوئی تھی، بس ایک ان کو ہی بہوؤں کا سکھ نصیب نہ ہوا۔ حسیب ابھی بھی یونیورسٹی میں انجینئرنگ کے 4تھے سیمسٹر میں تھا اور اسد صاحب نے اسے چھوٹی سی گاڑی دلائی ہوئی تھی تاکہ آنے جانے میں آسانی ہو۔ زارا نے بھی اسی سال اس کی ہی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ گاؤں شہر سے دور ہونے کی وجہ سے جب ظفر صاحب نے اس کے لیے وین لگوانی چاہی تو سب سے پہلے ریحانہ چچی بول اٹھی کہ جب گھر سے منیب جاتا ہے تو اس کے ساتھ جانے میں کیا حرج ہے۔ چونکہ یاسمین کی طرف سے بھی کوئی اعتراض بلند نہ ہوا تھا تو باقی سب لوگ خاموش ہو گئے، اور یوں گھر میں ہر وقت اکٹھے رہنے والے منیب اور زارا نہ صرف ایک ہی یونی میں پڑھنے لگے بلکہ ساتھ آنے جانے بھی لگے، اور ان کی دوستی مزید گہری ہو گئی۔ یہ دوستی الفت میں کب بدلی دونوں کو ہی خبر نہ ہو سکی، باقیوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر دونوں کی ہی ماؤں سے امید رکھنا سراسر بے وقوفی نظر آ رہی تھی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ آج 13واں روزہ تھا۔ ریحانہ اور یاسمین کی کھٹپٹ ہوئے تقریباً 15 روز گزر چکے تھے، اور محلے والے کے ساتھ ساتھ گھر والوں کے دل میں بھی خود بدھ ہونے لگی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ اتنا لمبا وقفہ دونوں نے پہلے تو کبھی نہیں لیا تھا۔ ایک ہی گھر میں ہونے کے ساتھ ساتھ درمیانی دیوار کے گیٹ کی جانب ریحانہ کے گھر کی طرف نیم کا بڑا سا درخت تھا جس کا سایہ دونوں اطراف میں ہوتا تھا۔ دونوں نے ہی اس درخت کے سائے کے لیے چولہا دیوار کے پاس ہی لگایا ہوا تھا، اسی لیے اگر بڑی جھڑپ نہ بھی ہوتی تو بھی وہ لوگ دن میں 1 آدھ بار چونچے لڑا لیتی۔ مثلاً جب بھی کسی نے کسی کو ٹوکنا یا کوئی جلی کٹی سنانی ہوتی تو سنانا بہو کو اور کہنا بیٹی کو کے محاورے پر عمل کرتے ہوئے گھر کے کسی دوسرے فرد کو مخاطب کرتے ہوئے بات کر جاتی، اور دوسری طرف سے بھی ایسا ہی کچھ ہوتا۔ یوں ان کی ان ڈائریکٹ گولہ باری میں گھر والے خاصے محظوظ ہوتے۔ آج کل طویل خاموشی کی بڑی وجہ شاید رمضان کا ہونا تھا کہ روزہ رکھ کر دونوں خواتین جو اپنے اپنے کمروں میں جاتی ہیں تو عصر کے بعد ہی نکلتی ہیں۔ ظاہر ہے روزے دار عصر کے بعد صرف سانس ہی لے سکتے ہیں، کسی سے جھگڑا کرنے کی ہمت کہاں سے لائیں۔
ज़ारा नमाज़ पढ़कर बाहर आई तो यास्मीन सब्ज़ी बनाकर चूल्हे के पास रखकर खुद आटा गूंद रही थी। ज़ारा चलते हुए दीवार के पास आ खड़ी हुई और चूल्हा जलाती सायरा भाभी से खाने के बारे में पूछने लगी कि आज क्या बना रही हैं। पास ही रेहाना बैठी सब्ज़ी बना रही थी। यास्मीन आटा गूंदकर बावर्ची खाने में रखने गई तो रेहाना की मुर्गी मैदान खाली पाकर दीवार पर लांघते हुए उसकी बनाई सब्ज़ी तक पहुंच गई और नहायती दिल जमी से उसका सत्यानाश करने लगी। यास्मीन बावर्ची खाने से चावल लिए वापस आई तो आलू मटर ज़मीन पर बिखरे पड़े थे और मुर्गी प्याज लहसुन को चुगने के साथ साथ पाँव से भी रोलने में मसरूफ़ थी। एक तो पता नहीं इससे कब जान छूटेगी। अंडे तो खुद खा लेते हैं और खाने के वक्त हमारी तरफ ऐसे भेज देते हैं जैसे हमने उनका कर्जा देना हो। यास्मीन मुर्गी को सब्ज़ी का नाश मारते देखकर गुस्से में चावलों की परत ज़मीन पर पटकते हुए बोली। ज़ारा ने उनकी आवाज़ पर पलट कर देखा और उनके बिगड़ते तेवर देखकर एक ही जिस्त में उन तक पहुंची। कुछ नहीं हुआ, मैं उठा लेती हूँ, रिलैक्स रिलैक्स, मैं धो कर ला देती हूँ। ज़ारा हाथ उठाकर उनसे कहती नीचे बैठकर सब्ज़ी उठाने लगी। प्याज और लहसुन चूँकि गंदे हो चुके थे इसलिए यास्मीन बड़बड़ाती हुई दोबारा से लेने बावर्ची खाने में चली गई और ज़ारा आलू मटर उठाकर धोने के लिए बेसन की तरफ चली आई। मुर्गी को भी शायद घर का सुकून खटक रहा था इसलिए वो वापस अपने एरिया की तरफ जाने के बजाय परात में से चावल चुगने लगी, जिसे देखकर यास्मीन का बढ़ा हुआ बीपी मज़ीद ऊंचाई पर जा पहुंचा और गुस्से में तिनकती हुई बोली, बेड़ा गर्क जाए तेरा, तेरे मरण साए, एक तूने ज़िंदगी अजीरन कर रखी है, मजाल है जो ज़रा की देर हाथ इधर उधर होने दे। उन्होंने कहने के साथ साथ हाथ में पकड़ा चमचा मुर्गी की तरफ फेंका जो सीधा उसकी टांग पर लगी। अगले ही लम्हे वो किसी फसादी इंसान के मानिंद शोर मचाती दीवार के पार जा पहुंची और कुटुक कुटुक करते हुए सारा घर सर पे उठाकर अपने साथ हुए जुल्म के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करती एक कोने में जा खड़ी हुई। ज़ारा ने मुड़कर देखा तो गहरी सांस लेकर रह गई, मतलब अब सीज़ फायर ख़त्म होने को था। शोर सुनकर रेहाना सब्ज़ी छोड़कर उठ खड़ी हुई। उसके साइयों को क्यों मार रही है? तेरे घर से खाते हैं जो तुझे तकलीफ़ हो रही है। कसम खुदा का, मेरे बच्चों को बद्दुआएं दे रही है। बीबी, अगर कौओं के कहने से डंगर मरने लगे तो फिर बस लिया दुनिया ने। रेहाना चची भी डट कर गोया हुई। बीबी, अगर इसको रखा हुआ है तो संभाल के रख, आए दिन हमारा कोई ना कोई नुकसान कर जाती है। किसी दिन मैंने छुरी फेर कर इसको हांडी में डाल देना है। यास्मीन ताई ने आग जलाते हुए लापरवाही से कहा। आए वाह, ऐसी ही हांडी में डाल देना है? अंधेर नगरी मची हुई है क्या? अरे मरे ऐसी जुर्रत करने वाले, ऐसी हमाकत भी मत करना वरना मैं तो तेरे पेट से निकालने से भी नहीं चूकूंगी। रेहाना ने हाथ नचा नचा कर कहा तो सायरा भाभी अपनी बेसाख्ता छूटने वाली हंसी को छुपाने के लिए झुककर चूल्हे में फूंक मारने लगी कि उन दोनों का कोई भरोसा नहीं था कि वो एक दूसरे को छोड़कर उसे पकड़ लेती। ज़ारा ने मुड़कर अपने दाएं साइड पर देखा तो हमसाही अपनी एक बेटी और दो बहू के साथ दीवार से सर निकाले हुए होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए मुकम्मल तवज्जो से लड़ाई से फैज़याब हो रही थी। बाएं जानिब रेहाना की साइड पर भी कुछ ऐसा ही मंजर था। वो सब्ज़ी चूल्हे पर रखकर रेहाना की तरफ आई और बोली, खाला मेरी बात सुने। ज़ारा ने उन्हें मुखातिब करना चाहा मगर उसकी आवाज़ उनकी गरज बरस में ही दब कर रह गई। खाला मेरी बात तो सुने, क्या हो गया है? क्यों आप लोग अपना रोज़ा ख़राब कर रही हैं? ऐसी तो कोई बड़ी बात भी नहीं हुई और देखे हमसाए कैसे तमाशे देख रहे हैं। ज़ारा अपने लहजे में खफगी समोते हुए बोली, आए मुझसे क्या पूछती है कि क्या हुआ है? अपनी माँ की बात नहीं सुनी तुमने? मेरी मुर्गी को हांडी में डालने की बात कर रही है। मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये जलती है मेरी मुर्गियों से, क्योंकि मेरी दोनों मुर्गियाँ खैर से अंडे देती हैं और उसकी एक ऐसे ही फिर रही है और दूसरी बिल्ली ले गई। रेहाना कह तो ज़ारा से रही थी मगर सुना समीन को रही थी। अम्मा को भी जलने के लिए ये मुर्गी ही मिली है, हद है, ये दोनों बहनें भी। उसने खोल कर सोचा। अच्छा आप गुस्सा थूक दें, अम्मा का वो मतलब नहीं था, बस वो उनकी सब्ज़ी ख़राब हुई है ना, इसलिए गुस्से में छुरी फेरने का बोल गई हैं। ऐसा सच्ची में थोड़ी ना करेंगी। ज़ारा ने उन्हें अपने थी ठंडा करना चाहा। ये ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती, इसकी अंतड़ियाँ ना निकाल दूँ। रेहाना ने
छुरी उसकी तरफ करते हुए धमकी लगाई तो वो आंखें फाड़ते हुए 2 कदम पीछे हुई। जैसे मैं तो निकलवाने के लिए तैयार बैठी होंगी ना, ये सिर्फ बातें ही कर सकती हैं, अंतड़ियाँ निकालेंगी। यास्मीन ने तंदन सर झटका। देखे खाला, इसे तो पीछे करें लग जाएगी। ज़ारा ने छुरी लेकर नीचे फेंकी। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि आप प्लीज़ बस कर दें। इर्द गिर्द देखे तो सही कैसे लोग इकट्ठे हो गए हैं। वो उन्हें समझाने वाले अंदाज में बोली। तूने देखा था, तेरी माँ ने शुरू किया था, तब कुछ नहीं बोली और अब मुझे कह रही है जैसे मैं ज़्यादती कर रही हूँ। उन्होंने उससे खफगी से देखा। ओके, अम्मा की गलती है तो उनकी तरफ से मैं सॉरी करती हूँ, मगर आप प्लीज़ खामोश हो जाएं। मुझे बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है, इस वक्त ज़रा हिम्मत नहीं है कुछ सुनने की। ज़ारा ने अपने चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत तारी करते हुए अपना महफूज और आजमूदा पत्ता फेंका और वही हुआ। वो सब कुछ भूल भाल कर उसकी फ़िक्र में लग गई। क्यों, खैर से रोज़ा क्यों लग रहा है? सुबह सैरी नहीं की थी? उन्होंने उसके माथे और गाल को हाथ से छूते हुए तशवीश से पूछा। आज लेट उठी थी और रात करेले का सालन था जो कि मैं नहीं खाती, और दही भी कुछ खास नहीं खाया था, इसलिए ढंग से खाना नहीं खाया। वो उनको नरम पड़ते देखकर अपना मुंह लटकाते हुए बोली। तो मेरी बच्ची मेरे पास आ जाती, खाला सदके मैं कुछ बना देती अपनी बेटी को, और तू सिर्फ मेरे साथ मत्था लगाने में ताज़ा होती है, वरना बेटी का कोई ख्याल नहीं। एक तो इस नुमानी ने खाली पेट रोज़ा रखा हुआ है, ऊपर से तुमने सुबह से इसे झाड़ू दिलवाया। अगर तुझसे नहीं होता तो मुझे बता दिया कर, मगर इस गर्मी में लड़की को ख्वार मत किया कर। उन्होंने ज़ारा को कहते हुए मुड़कर यास्मीन को घूरा। जवाबन वो ऊँ करती चावलों को तड़का लगाने लगी। इसीलिए कह रही हूँ कि आप लोगों को बोलता सुनकर मुझे कुछ हो रहा है। मैं मना नहीं कर रही, आप लोग चाहे तो इफ्तारी के बाद का प्रोग्राम रख लें। ज़ारा ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। लड़ाई ना हो गई, महफिल मौसीकी हो गई जिसका इफ्तारी के बाद प्रोग्राम रखना है। सायरा भाभी भी बड़बड़ाती बर्तन उठाकर धोने के लिए चली गई। अच्छा कुछ नहीं बोलती, तू जा और जाके लेट जा। मुनीब आता है तो मुझसे भेजती हूँ, वो पंखा निकाल कर लगा देगा। और हाँ, तुझे कोई ज़रूरत नहीं अपनी माँ के पके बेस्वाद खाना खाने की। अफ्तारी मेरे पास आकर कर लेना, मैं पकौड़े और कड़ी बना लेती हूँ। गज़ब खुदा का, एक ही बेटी है, उसका भी ख्याल नहीं रख सकती। ज़्यादा बच्चे होते तो पता नहीं ये औरत क्या करती। वो जलती कुर्ती दीवार से पीछे होकर बावर्ची खाने में चली गई। अब उन्हें ज़ारा के लिए स्पेशल इफ्तारी बनानी थी। दूसरी तरफ वो आसमान की जानिब देखते हुए शुक्र अदा करती आकर बेसन पर हाथ मुँह धोने लगी। एलओसी पर खिलाफ वर्जी किसकी जानिब से हुई थी? इशा के बाद वो दोनों छत पर बैठे थे और ज़ारा उसे दिन में होने वाली कार्रवाई से आगाह कर रही थी। उसकी मुकम्मल रिपोर्ट के बाद मुनीब ने पूछा। इस बार किसी इंसान ने नहीं की थी, बल्कि तुम्हारी उस मुर्गी की गलती थी। वो न सिर्फ बॉर्डर क्रॉस कर गई थी, बल्कि बाकायदा तखरीब कारी करते हुए पकड़ी भी गई थी। ज़ारा ने चिप्स का टुकड़ा उठाते हुए जवाब दिया। ओ तेरी, मैं तो समझा था कि ये लोग नॉर्मल हो रहे हैं, मगर बेड़ा गर्क उस मुर्गी का जो फिर से ज़ख्म ताज़ा कर दिए। मुनीब ने अफसोस से सर हिलाया। इतने में सायरा भाभी चाय लेकर आई तो वो दोनों खामोश हो गए। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, वही पुरानी कहानी। मुनीब ने ट्रे से मग पकड़ते हुए बेजारी से कहा। इस तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने से तो मसला हल नहीं होगा। पहले सिर्फ इंसानी मसले थे, अब हैवानाती भी बनने लगे हैं, और इससे पहले ये मसले जमादाती और फिर नबाताती बने। तुम दोनों अपनी लव स्टोरी को समेट लो, वरना ये कढ़ाई में डाले हुए बूंदी के पेस्ट की मानिंद बिखर कर रह जाएंगे। सायरा भाभी ने चाय का मग ज़ारा को थमाते हुए कहा। कैसे भाभी, वही तो समझ नहीं आ रहा। मुनीब ने परेशानी से कहा। देखो, दोनों घरों में इस रिश्ते से किसी को कोई मसला नहीं होगा, मगर तुम लोगों की माएँ वीटो पावर रखती हैं। मतलब उनकी तरफ से अगर ना हो गई तो समझो हो गई। बस किसी तरह उनको हाथ में कर लो, बाकी घर वालों के कानों तक बात मैं पहुंचा दूंगी। सायरा भाभी ने पुरखुलूस लहजे में कहा। वही तो समझ नहीं आ रहा, ज़ारा ने झुंझलाते हुए कहा। मेरे पास एक आइडिया है। तुम दोनों अपने अपनी खालाओं के चहीते हो तो थोड़ा सा इस बात का ही फ़ायदा उठा लो और उनकी सुलह कराने की कोशिश करवाओ। गर हो गई तो ठीक, वरना मुनीब ज़ारा की डोली उठाने में मदद कर देगा और ज़ारा उसकी बारात के साथ चली जाएगी। उन्होंने शरारत से कहा। दोनों ने उसे नाराज़गी से देखा।
ओके, ऐसे मत देखो, प्लान सुनो। सायरा भाभी सरगोशी में उन्हें समझाने लगी। अगर पकड़े गए तो? ज़ारा ने डरते डरते पूछा। नहीं पकड़े जाओगे, मैं पूरी पूरी मदद करूँगी। बस तुम लोग अल्लाह का नाम लेकर सो पहला कदम उठाओ। इससे पहले कोई और वहाँ आता, सायरा भाभी उन्हें हौसला देते हुए नीचे चली गई। खाला जानी क्या कर रही हैं? ज़ारा हाथ में कस्टर्ड का छोटा सा बाउल लिए दीवार फलांग कर ही रेहाना की तरफ आई। कुछ नहीं बेटा, ये थोड़े से कपड़े निकाल रही हूँ, और कुछ ये सायरा ने दिए हैं, कह रही थी कि किसी ज़रूरतमंद को दे दूँ। रेहाना ने कपड़ों को तह लगाते हुए जवाब दिया। मगर ये तो पुराने नहीं हैं, कि भाभी ने पहने हुए हैं। अगर देने हैं तो नए देना। ज़ारा ने एक शर्ट उठाकर देखते हुए कहा। इतने पुराने भी नहीं हैं, ये वाला जोड़ा उसने सिर्फ 3 बार ही पहना है। उसके बाद सर्दियाँ शुरू हो गई तो रख दिए। अब कह रही है कि ये बहुत तंग हो गए हैं और खुला करने को कपड़ा भी नहीं है, इसलिए किसी को दे दूँ। उन्होंने एक जोड़ा उठाकर उसे दिखाया। अच्छा खैर ये ले, अम्मा ने भिजवाया है। उसने कस्टर्ड बाउल उनके सामने करते हुए कहा। मुनीब के लिए? जा फ्रिज में रख दे, इफ्तारी के बाद खा लेगा। उन्होंने कपड़े शॉपर में डालते हुए कहा। अरे नहीं, इस क्यूट सी भांजी की खाला, ये अम्मा ने आपके लिए दिया है। कह रही थी कि तेरी मासी को बड़ा पसंद है, जाओ उसको दिया। ज़ारा ने बमुश्किल चेहरे पर सच का खोल चढ़ाया, वरना हकीकतन एक दूसरे के बारे में कायम करना उनके ख्यालात से भला कौन नावाकिफ़ था। पास बैठी सईदा दादी ने थोड़ी पे उंगली रखते हुए ताज्जुब से उसे देखा तो वह नज़रें चुरा गई। तेरी माँ ने मेरे लिए दिया है? उसका दिमाग अपनी जगह पर तो है या फिर खिसक खिसक गई है? हैरान तो रेहाना भी रह गई थी और अपनी इस हैरानी को ज़ुबान दिए बगैर ना रह सकी। वो बिल्कुल ठीक है। आपको पता है, अम्मा मुझे बता रही थी कि आपको कस्टर्ड बहुत पसंद है और उनके हाथ का तो और भी फेवरेट था। कहने लगी, जा ज़ारा, जाके अपनी मासी को देकर आ, मेरा नाम न लेना, सोचेगी मुझे उसकी फ़िक्र है। ज़ारा ने रोज़ा रखकर झूठ बोलने पर दिल ही दिल में ढेरों बार इस्तग़फ़ार कह डाला। सच बता, तेरी माँ ने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है? मुझे मारने के लिए कोई तावीज़ या जहर की पूड़ियाँ मिला दी हो? रेहाना मशकूक हुई। आप ऐसे ही शक कर रही हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अगर आपको ज़्यादा मसला है ना तो इफ्तारी के बाद मैं आऊँगी, पहले मैं चखूँगी फिर आप खा लेना, ज़ारा ने कहा तो वो खामोश होकर रह गई। अलबत्ता उनके चेहरे पर सिर्फ हैरानगी इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि उन्हें इस अचानक पलटी काया पर अभी तक यकीन नहीं आया। दूसरी तरफ जैसे ही असर की नमाज का टाइम हुआ और रेहाना और दादी नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ हुई, सायरा भाभी ने चुपके से चिकन का सालन प्लेट में डालकर मुनीब को दिया और कुछ ही देर में वो कमरे में जाए नमाज पर बैठी यास्मीन के पास प्लेट रखकर खुद उनकी गोद में सर रखे लेटा हुआ था। वहाँ भी बेयकीनी की कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। तुझे गलत फहमी हुई होगी, सायरा ने भिजवाया होगा, वरना तेरी माँ और मेरे लिए कुछ भेज दें। नामुमकिन। यास्मीन ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं खाला, आजकल तो अम्मा बहुत बदली बदली लग रही हैं। कल भी आपके बचपन के किस्से सुना रही थी। आपको पता है, वो कह रही थी कि यास्मीन मुझसे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी वो बहुत प्यारी थी, मगर न जाने किसकी नज़र लगी और हम लोग दूर हो गई। और पता है, वो उठकर बैठा और पुरजोश होते हुए बोला, वो कह रही थी कि उन्हें अपनी वो मोहब्बत करने वाली बहन जो उनसे छोटी से छोटी बात भी शेयर करती थी बहुत याद आती है। कह रही थी कि अब तो एक अरसा ही गुजर गया है मिलकर बैठे हुए और दिल की बातें किए हुए। जब भी बाहिर बहनों को आपस में दुख सुख की बातें करते देखती हूँ तो दिल में कसक से उठती है। मेरी तो हसरत ही रह गई है कि मुझे भी ऐसा दिन देखना नसीब हो। मुनीब ने रोज़े से और जाए नमाज पर बैठकर झूठ बोलते हुए दिल ही दिल में ढेरों बार इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए कहा, तो कसूरवार भी तेरी माँ है, खामखा की दुश्मनी पाल रखी है, वरना क्या मेरा दिल नहीं करता कि मैं भी अपनी बहन के साथ दुख सुख बांटूं। माँ बाप तो हमारे बचपन में गुजर गए, हम दोनों ही थे, मगर उस पर भी तेरी माँ ने बैर पाला हुआ है। यास्मीन सर खारिज करते हुए बोली, आपकी बहन है, आखिर कब तक नाराज़ रहेंगे आपसे। अब अगर वो सब कुछ पहले जैसा करना चाह रही हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप भी थोड़ा सा झुक जाएं और एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करके एक दूसरे को गले से लगा लें।
मुनीब ने उनको धीमा पड़ते देखकर दूसरा पत्ता फेंका। अच्छा चल तू बैठ, मैं तुझे प्लेट खाली करके देती हूँ, वो उठते हुए बोली। अरे नहीं रहने दे, मैं घर नहीं जा रहा, अभी एक काम से जाना है, ज़ारा खुद ही दे आएगी, वो जल्दी से उठते हुए बोला और उनके जवाब का इंतज़ार किए बगैर बाहर निकल गया। गेट के पास वॉश बेसिन पर खड़ी ज़ारा की जानिब मुस्कुराहट उछालता वो गेट से निकल गया। उसके बाद वक्तन फ़ौक्तन दोनों अतराफ से मुख्तलिफ डिशेस का तबादला होता रहा। उसके साथ साथ वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ से अपनी माओं का नाम लिए खैर सगाली के पैगामात भी पहुंचाते रहते, जिससे दोनों फ़रीकीन में काफ़ी हद तक सब्र आया था। अब वो कभी कभी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर जाती थी। सायरा भाभी हसीब के साथ शॉपिंग पर गईं तो रेहाना और यास्मीन का एक एक सूट लाके आंख बचाकर ज़ारा को दे चुकी थी और रेहाना वाले सूट का उसे ही कुछ बंदोबस्त करना था। तो उसने एक दिन जब रेहाना कहीं गई हुई थी, उनके वापस आने पर वो सूट लाकर उनके सामने रखा कि ये ज़ारा आपके लिए देकर गई है, यास्मीन खाला ने भिजवाया है। वो तो सुनकर ही हक्का बक्का रह गई। ये यास्मीन ने भिजवाया है? उन्होंने बेयकीनी से पूछा तो सायरा ने अज़बात में सर हिला दिया। हटो पीछे, मैं ज़रा जाकर उससे पूछो तो सही, आखिर तमाशा क्या लगा रखा है, कभी कुछ भेज देती है तो कभी कुछ। एकदम से पैकेट उठाकर उठी, उसको दीवार की तरफ जाते देखकर सायरा बौखला गई। नहीं नहीं अम्मा रुके तो, उसने जल्दी से भागकर उन्हें रोका। क्या रुकूं? मैं कितने ही दिनों से उसकी ये हरकतें बर्दाश्त कर रही हूँ, पता तो करूँ कि ये सब करके करना क्या चाह रही है, वो उसे घूरते हुए बोली। आप बैठे तो मैं आपको समझाती हूँ, सायरा मुँह पर हाथ फेरकर अपनी बौखलाहट पर काबू पाते हुए बोली और उनको चारपाई पर बिठाया। देखे अम्मा, उसने हाथ खड़े करके तमहीद बांधी। हालांकि उस अचानक पड़ने वाली इफ्तार से उसे कुछ ख़ास समझ नहीं आ रहा था, जो वो कहकर उन्हें राम कर दी। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि अगर वो झुक रही हैं तो आपको भी दिल बड़ा कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला को हौसला रहमी बहुत पसंद है और ये बात शायद यास्मीन खाला ने कहीं से सुनी है। ज़ारा कह रही थी कि आजकल मौलाना तारिक जमील के बयानात बहुत दिलजमी से सुन रही हैं, हर वक्त उनके बयानात सुनती रहती हैं और उन पर अमल करने की भी कोशिश करती हैं। तो मेरे ख़्याल से उनका दिल बदलने के पीछे की वजह भी यही होगी। वो तो आपके साथ अच्छा सलूक करके अल्लाह पाक के यहाँ सुरखरू हो जाएंगी। अब अगर उनके अच्छे सलूक का जवाब बुरे सलूक से देंगी तो सारा गुनाह आपके खाते में लिख दिया जाएगा। आप क्यों अपनी आखिरत ख़राब कर रही हैं? और वैसे भी पहल वही कर रही हैं तो करने दें, आपका क्या जाता है। बल्कि ख़ानदान भर में आप कह तो सकती हैं कि वो खुद ही आपकी तरफ आई, सायरा भाभी ने बहुत मुश्किल से बात बनाते हुए कहा और दिल ही दिल में ख़ुद को कोसा, जिससे इतनी सी बात भी संभाली नहीं जा रही थी। मगर छोड़े भी अम्मा, दिखाएं तो ज़रा कैसा सूट है, इधर मुझे दे, मैं खोल कर देखूं। उन्हें टोकते हुए उन्होंने शॉपर पकड़कर सूट खोलकर देखने लगी। आप शाम के बाद जाकर सिलाई करने के लिए ले आएँ, ईद पर पहन लीजिएगा, सायरा भाभी ने किन अँखियों से उनके नॉर्मल तासरात का जायज़ा लेते हुए सरसरी से अंदाज में कहा। वो महज हुंकारा भरकर खामोश हो गई। सायरा भाभी ने तवील सांस खारिज करते हुए बात टल जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया। मुनीब, ज़ारा और सायरा की कोशिशों का ही नतीजा था, जो आज 25वां रोज़ा गुजर जाने के बाद भी कोई हंगामा नहीं हुआ था। ऐसे में सायरा ने मुनीब को एक बार रेहाना के कान में बात डालने को कहा। अम्मा, ये यास्मीन खाला आपसे हर वक्त लड़ती क्यों रहती है? दोहर की नमाज़ पढ़ के वो दादी के कमरे में आया, जहाँ रेहाना भी मौजूद थी। वो नामहसूस अंदाज में पाँव की ठोकर से रेहाना की चप्पल को बेड के नीचे धकेलते हुए उसके पास बैठा। बस बेटा, क्या बताऊँ, तेरी खाला जलती है मुझसे, शुरू से ही मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर जाती थी, मगर मैं खामोश हो जाती थी कि चलो छोटी है। मगर छोटी ने मुझे बड़ा दुख पहुँचाया, मेरे भरम और अना को ठेस पहुँचाई है। बस तब से मेरे दिल से उतर गई है, रेहाना ने गमज़दा होते हुए बताया। ओह, मतलब खाला ने आपको बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है? मुनीब ने लफ्ज़ उकड़े और अगले ही लम्हे वो उनका हाथ थामता हुआ बोला। अगर ऐसी बात है तो आप उनसे बदला लें। ऐसा करें, उनकी बेटी को ब्याह कर ले आएँ और फिर सारे बदले निकाल लीजिएगा। बेटी को तकलीफ़ में देखेंगी तो आपकी तकलीफ़ का अंदाज़ा होगा।
मुनीब, रेहाना की दहाड़ ने उसकी बोलती बंद की। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी बात करते हुए? बहन बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, और मुझे अफसोस है कि तुमने इतनी घटिया बात सोची भी कैसे? तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं उनके साथ कुछ गलत करूँगी जिसकी माँ मुझे जहर लगती है? मगर उसके बावजूद उस लड़की को देख देख कर मेरा कलेजा ठंडा होता रहता है। लानत है तुझ पर। तुझे वो दोस्त कहती है और उसकी माँ की ज़ुबान मुनीब मुनीब कहते नहीं थकती, और तू उसकी बेटी के लिए ऐसा सोच रहा है? तुफ़ है तुझ पर। वो उसका हाथ झटकती कमरे से निकल गई, मगर मुनीब के 14 तबक रोशन कर गई थी। पुत्र, अपनी तरफ से पहली बॉल तूने बड़ी ही शानदार खेली है, मगर तेरी बुरी किस्मत कि वहीं खड़े खड़ी कैच हो गई। दादी जो ठोड़ी तले उंगली रखे उसे देख रही थी, ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोली। वो खिसिया कर रह गया। चलो अब बस करो, बहुत हो गया तुम लोगों का तमाशा। मैं कुछ सोचती हूँ, आज आते हैं तो करती हूँ तुम्हारे बाप और ताया से बात। दादी ने तस्वीर निकालते हुए कहा। पिछले कुछ दिनों से उनकी हरकतें तो एक तरफ, वो पूरे के पूरे ही उन्हें मशकूक लग रहे थे। उन्होंने जब सायरा भाभी को घेरा तो उसने सारी बात बता दी। प्लीज़ जल्दी कर लीजिएगा, खाला ने उसके रिश्ते की बात कर रखी है किसी से। मुनीब उठते हुए बोला। फ़िक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा, अल्लाह बेहतर करेगा, वो कहते हुए पलंग से टेक लगाते हुए तस्वीर पढ़ने लगी तो वो भी बाहर निकल गया। दादी ने शाम को दोनों बहू बेटियों को बुलाकर बात की और हिस्ब तवक्को दोनों बेटियों की जानिब से ही कोई एतराज़ नहीं आया था, मगर दोनों बहुएं भड़क उठी थी। चुपचाप बैठी रहो, वरना अभी मुझ में इतनी हिम्मत है कि तुम दोनों को चोटी से पकड़कर घर से बाहर कर दूं। ये जो आए रोज़ तुम दोनों तमाशा लगाती हो, इसमें अगर मैं कुछ नहीं बोलती तो मुझे कमज़ोर मत समझना। दादी एकदम जलाल में आते हुए घुर्राई। मगर अम्मा, ऐसे कैसे? रेहाना मन बनाई। सास को गुस्से में देखकर वो सारा भूल गई थी। क्या ऐसे कैसे? हर्ज क्या है आखिर? ज़िंदगी के 40-50 बरस गुजार चुकी हो, अब तो बस कर दो। पिछले 20 सालों से बिल्लियों की तरह लड़ती आ रही हो, क्या हासिल हुआ है? आज मुझे बता ही दो, आखिर तुम दोनों ने बांटा क्या है? वो झुंझलाते हुए बोली। मेरी एक ही बेटी है और आप जानती हैं उसे, ये तो मेरी बेटी का जीना हराम कर देगी। मेरे सारे बदले मेरी बेटी से लेगी। यास्मीन गड़बड़ाते हुए बोली। तेरा दिमाग ख़राब हो गया है? ज़ारा मेरी भी बेटी है, तुझसे ज़्यादा मैं उससे प्यार करती हूँ। मेरी ज़ुबान न जल जाए जो मैं उससे कुछ कहूँ। तुफ़ है तेरी घटिया सोच पर। रेहाना उसकी बात पर तड़प ही तो उठी थी। मैं गलत क्या कह रही हूँ? अपना रवैया देखा है तूने? बिला वजह मुझसे लड़ती है, खुदा वास्ते का बैर बांधा हुआ है। ऐसी सूरत में मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। यास्मीन ने धीमा पड़ते हुए जवाब दिया। मैं बिला वजह लड़ती हूँ? मैं लड़ती हूँ? अपने करतूत देखे हैं तूने? रेहाना ने हाथ नचा नचा कर जवाब दिया। बस, कोई फिजूल बहस नहीं। जो बात करने के लिए मैंने बुलाया है उस पर ध्यान दो। उनको फिर से शुरू होते देखकर दादी ने घुरका। हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है, बात अब औरतों पर है। खुद ही देख लें, हमारे ख्याल से ईद के दिन कोई छोटी सी रस्म कर लेते हैं, बाद में बच्चों के इम्तहान शुरू हो जाएंगे तो उनकी रूटीन ख़राब होगी। क्यों भाई साहब? असद चचा ने कहते हुए बड़े भाई की तायद लेनी चाहिए। जो अम्मा को मुनासिब लगे। उन्होंने सब कुछ सईदा दादी पर छोड़ते हुए कहा। चलें फिर ठीक है, आज से ज़ारा आपके पास हमारी अमानत है। इंशाअल्लाह ईद पर कोई छोटी मोटी रस्म कर लेंगे और शादी दोनों की पढ़ाई के मुकम्मल होने पर, असद चचा ने मुस्कुराते हुए कहा। मंगनी की बजाय अगर आप लोग निकाह कर लें ज़्यादा मुनासिब रहेगा। दोनों का हर वक्त का साथ है तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई कबाहत होगी। सारा भाभी ने सईदा दादी को देखते हुए कहा। उसकी बात का मतलब समझकर उन्होंने अज़वात में सर हिलाया। ठीक कह रही हो तुम। ऐसा करते हैं कि ईद के दूसरे दिन निकाह की छोटी सी तकरीब रख लेते हैं। सईदा दादी ने तायद की। तुम दोनों क्यों मुंह में घुघनियाँ डालकर बैठ गई हो? कोई मसला है क्या? दोनों बहनों को खामोश देखकर उन्होंने संजीदगी से पूछा। दोनों ही उनके तेवर देखकर नफ़ी में सर हिला गई। 3 दिन रह गए ईद में, तो जो थोड़ी बहुत तैयारी करनी है जाकर शुरू करो। और ख़बरदार जो इस नए काम से पहले पंजे लड़ाने बैठी। निकाह बखैर व आफियत हो जाने दो, फिर करती फिरना जो करना हुआ। दादी ने सख्ती से तंबीह की और इस बार भी दोनों ने फर्माबरदारी से सर हिला दिया। वो दोनों छत पर मौजूद उस पंचायत का फ़ैसला जानने को बेताब खड़े थे।
सायरा भाभी ने मुनीब को डन का मैसेज भेजा तो वो उछला और एकदम से उठकर नाचना शुरू हो गया। उसको यूं उछलता देखकर ज़ारा खिलखिला कर हंसी और अगले ही लम्हे किसी के मतवज्जा होने के डर से मुंह पे हाथ रख गई। ये 3 दिन बहुत मसरूफ़ गुजरे थे। ईद के साथ साथ अचानक तय पाने वाले निकाह की तैयारियां भी उरूज पर थी, इसलिए किसी को सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। मुनीब और ज़ारा का मुकम्मल पर्दा करवा दिया गया था और दादी ने पूरी निगरानी भी रखी हुई थी, इसलिए वो बस एक दूसरे को कॉल और मैसेजेस के ज़रिए ही अपडेट्स दे रहे थे। यास्मीन चूँकि अकेली थी, इसलिए सायरा भाभी और रिहाना भी उसकी मदद करवा रही थी। सारा दिन बाज़ार के चक्कर लगाने के बाद वो आधी रात तक एक दूसरे के यहाँ बैठी काम निमटवाती रहती। निकाह के दिन दुल्हन और सायरा भाभी को पार्लर तक ले जाने की जिम्मेदारी हसीब को सौंपी गई, क्योंकि दोनों ने ही गांव की पार्लर वाली से तैयार होने से साफ मना कर दिया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अगर जो रेहाना बकौल सायरा भाभी की यास्मीन का दिया हुआ सूट निकाह की तकरीब के लिए ना पहनती। चूँकि घर ही की बात थी तो यास्मीन ने सायरा को ज़ारा के साथ शहर पार्लर भेज दिया था। वो लोग जब तैयार होकर वापस आई तो ये लोग यास्मीन के यहाँ जा चुके थे और कारी साहब समेत तमाम लोग दुल्हन के ही इंतज़ार कर रहे थे। सायरा भाभी जैसे ही ज़ारा को लेकर घर में दाखिल हुई, रेहाना को उस सूट में देखकर चौंकी, मगर उसे असल धचका तब लगा जब यास्मीन भी उसी के ही दिए हुए सूट में मलबूस थी। ख़रीदते वक्त उसने बेध्यानी में दोनों जोड़ों का प्रिंट एक सा ही ले लिया था, बस रंग मुख्तलिफ था। तब शायद उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कुछ ऐसा इत्तफाक भी हो सकता है। अपने थी तो उसने बस मन की मैल साफ़ करने के लिए तोहफ़ा लिया था, मगर अब उसे अपने तन की मैल उतरती साफ दिखाई दे रही थी। वो दिल ही दिल में खुदा को मदद के लिए पुकारती ज़ारा को बिठाकर खुद दादी के पहलू में जा बैठी। निकाह के बाद सब ने दोनों को मुबारकबाद दी और ढेर सारी दुआओं से नवाजा। दादी के इशारे पर सायरा भाभी ने उठकर सबका मुंह मीठा करवा दिया। मोहल्ले के चंद मुअज़्ज़िज़ लोगों को भी मदऊ किया गया था, सो असद चचा ने खाना लगाने का कहा। तीनों ख़वातीन ने मिलकर खाना सर्व किया। खाने के बाद मेहमान चले गए तो वो सब लोग एक बार फिर कमरे में जमा हो गए। मुनीब और ज़ारा ने जैसे ही रश ख़त्म होते देखा, फ़ौरन से पहले दादी के पास पहुँचे और हाथ फैलाते हुए यक ज़ुबान होकर बोले, हमारी ईदी? कौन सी ईदी? ईद कल थी, गुज़र गई, सो बात ख़त्म। दादी ने साफ जवाब दिया। आप जानती हैं कल कितना काम था, वक्त ही नहीं मिला। आज भी ईद का ही दिन है, चले हमारी ईदी निकाले। मुनीब ने हाथ पीछे किए बगैर कहा और ज़ारा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अभी कुछ देर पहले इतनी अच्छी और बड़ी ईदी दी है, उसका कोई माँ प्यो नहीं। उन्होंने दोनों को घूरा। हमें नकद ईदी चाहिए, वो तो आपने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है, मुनीब ने बेनियाजी से कहा। और इस फ़र्ज़ को पूरा करवाने के चक्कर में जो पापड़ तुम लोगों ने बेले हैं ना, अगर मैं बता दूँ तो यहाँ जंग का मैदान सज जाएगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मध्यम लहजे में कहा। वो दोनों ही ढीले पड़े। प्लीज़ ना दादी, ज़ारा ने मुंह लटकाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए दोनों को कुछ पैसे थमाए, जिनको गनीमत जानते हुए दोनों ने ही चुपचाप पकड़ लिए। चले अम्मा जान। सायरा भाभी चाय का खाली कप रखते हुए उठ खड़ी हुई। चलते हैं, ऐसी भी क्या जल्दी है? रेहाना जो यास्मीन के पास बैठी बातें कर रही थी, एक नज़र उसे देखते हुए बोली और दोबारा से बातों में मसरूफ़ हो गई। सायरा भाभी उन दोनों को करीब बैठा देखकर पहलू बदल कर रह गई और 5 मिनट बाद ही दोबारा जाने के लिए बोली, आए हाय, चलते हैं। ये 2 कदम पर तो जाना है, कौन सा दूसरे सूबे में जाना है जो तुझे इतनी जल्दी मची हुई है? खामोशी से बैठी रहे। रेहाना ने अब की बार थोड़ा डपट कर कहा। क्या हो गया भाभी? ज़ारा ने उसको बेचैन देखकर पूछा। जवाबन उसने इशारे से उसे बताया, जिस पर ज़ारा की आंखें फैली। वो मुनीब को अपने पीछे आने का इशारा करती चुपके से बाहर खिसक गई। उसके पीछे 2 मिनट बाद ही मुनीब भी उठ गया। मुझे लगता है कि हमारे कपड़ों का डिज़ाइन एक जैसा है, यास्मीन ने रेहाना की कमीज़ को हाथ में पकड़कर देखते हुए कहा। सायरा भाभी ने बेख्तियार आसमान की तरफ देखा, गोया शिकवा किया हो कि क्या था जो मुझे बचा लेता। ले, ये भी भला कोई कहने की बात है? मैं तो आते देख कर ही पहचान गई थी कि तूने भी मेरे जैसा ही सूट बनवाया है। रेहाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने खुद कहाँ बनाया है, ये वही है जो तूने भिजवाया था।
मुझे तो इसका रंग और प्रिंट बड़ा पसंद आया और कपड़ा भी अच्छा है। अच्छा किया जो तूने भी ऐसा ही ले लिया था। अरे नहीं, ये मैंने नहीं लिया, ये तो तेरे वाला है। सायरा ने मुझे कहा था कि सिलवा लूँ, मुझ पर अच्छा लगेगा, तो मैंने सोचा तूने तोहफ़ा दिया है तो किसी अच्छे मौके पर पहनूंगी, और इससे भला कोई अच्छा मौका कहाँ हो सकता है। रेहाना ने उसकी भिजवाने वाली बात पर शायद गौर नहीं किया था, इसलिए अपनी ही धुन में बोली। दादी मुंह पर उंगली रखे मुस्कुराहट रोकती सायरा भाभी की उड़ती रंगत देख रही थी। जानती हूँ मैंने तेरे लिए कोई जोड़ा नहीं लिया, इसलिए तंज कर रही है, मगर पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि तूने मुझे तोहफ़ा भिजवाया है। मगर ज़ारा ने मुझे कहा कि नहीं अम्मा, यह खाला ने आपके लिए ही दिया है, तो मैं हैरान रह गई। फिर सोचा कि तुझे ईद पर कोई जोड़ा दिलवा दूँगी, मगर कामों में मसरूफ़ होकर जहन से निकल गया। मगर तू फ़िक्र न कर, तेरा उधार नहीं रखती, ले दूँगी तुझे भी। यास्मीन ने उनके बात को तंज के मायनों में लिया था, इसलिए पूरी वजाहत दे डाली। मैंने तो तुझे कोई जोड़ा नहीं दिया, बल्कि तूने ज़ारा के हाथ मुझे भिजवाया था। क्यों सायरा? रेहाना ने मुड़कर सायरा को मुखातिब किया। जी, उसने मरे मरे अंदाज में जवाब दिया। नहीं, ज़ारा के हाथ तो तूने मुझे भिजवाया था कि इस बार ईद पर मैं तुम्हारे वाला जोड़ा ही पहनूं। यास्मीन ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। ले दस, मुझे क्या ज़रूरत थी तुझे जोड़े भिजवाती फिरूं, बल्कि तुझ पर ही आजकल नेक बनने का भूत सवार हो रखा है। जभी तो कभी कुछ खाने को भेजती रहती है, तो कभी ये तोहफे। मुझ पर भूत सवार नहीं हुआ, मुनीब मुझे बता रहा था कि तू आजकल मुझे याद करती रहती है और तोहफे मैं नहीं भेजती, तू भेजती है। मेरा भी दिमाग नहीं ख़राब हुआ जो तुझ पर पैसे ज़ाया करूं। यास्मीन के इंकशाफ, रेहाना का मुंह खुला देख। अभी तो तू ये मान कि ये सूट और दूसरी चीज़ें तू मुझे भेजती रही है। रेहाना ने उंगली उठाकर कहा। कैसे मान लूँ जब ये सब चीज़ें तुम्हारी तरफ से आती रही हैं? ओह, अब समझी, तुझे मेरी बेटी का रिश्ता चाहिए था ना, इसलिए मीठी बन रही थी। यास्मीन ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। मुझे रिश्ता? एक मिनट, एक बात तो पक्की है कि मैंने तुझे कोई चीज़ नहीं भेजी, और तू भी कह रही है कि तूने भी नहीं भेजी, मगर हमें मिलती रही है, तो फिर तीसरा कौन? उन्होंने सोचते हुए यास्मीन की जानिब देखा। कुछ सोचकर वो सायरा भाभी की तरफ मुड़ी, जो सर झुकाए हाथ में चल रही थी। तूने मुझे दिया था जोड़ा कि ज़ारा देकर गई है, और ये भी कहा था कि आजकल यास्मीन इस्लामी बयान सुन रही है, उसका दिल बदल रहा है, वो पहल कर रही है, झुक रही है, तो मैं भी झुक जाऊं? उन्होंने सायरा को कड़े तेवरों से घूरते हुए पूछा। ये सब तो मुझे मुनीब ने भी कहा था। यास्मीन बेसाख्ता बोली। कब से दोनों की बहस सुनते हुए असद और ज़फ़र साहब ने कहा लगाया। अभी तो तुम लोग ये मान लो कि ये तीनों बच्चे आप दोनों ख़वातीन के साथ खेल गए हैं, असद चचा ने हंसते हुए कहा। सायरा, रेहाना ने दांत पीसे। वो अम्मा, मैं वो खुद को अकेला पाकर गड़बड़ा गई। तुम देख रहे हो अपनी बीवी की हरकतें, ये झूठ बोलकर मुझे धोखा देती रही है। रेहाना ने हसीब को मुस्कुराता देखकर शिकायत लगाई। ये भी सब में शामिल थे। सायरा जल्दी से बोली, मगर फ़ौरन लब दबा गई। रेहाना ने सदमे से हसीब को देखा, जो खजालत से सर खुजा रहा था। कमरे में एक बार फिर दोनों भाभियों का कहा गूंजा। ये ज़ारा किधर गई है? उसको तो मैं पूछती हूँ, यास्मीन उठते हुए बोली। अच्छा बस, तुम तो बच्चों के पीछे ही पड़ गई। क्या गलत किया उन्होंने? तुम दोनों बहनों की सुलह ही करवानी चाहिए ना, कोई गुनाह तो नहीं किया। और सायरा पुत्र, तू क्यों इतनी शर्मिंदा हो रही है? सुकून से बैठ, कुछ गलत नहीं किया तूने। ख़बरदार जो तूने दोबारा उसको आंखें दिखाने की कोशिश की तो। दादी ने सायरा की रोनी सूरत देखकर यास्मीन के साथ साथ रेहाना को भी झड़का। उनको फॉर्म में आते देखकर दोनों ही खामोशी से अपनी अपनी जगह पर बैठ गई। दूसरी जानिब वो दोनों छत पर नीचे से आने वाली गोलाबारी पर कान टिकाए टहल रहे थे। मुनीब ने थोड़ा सा झांक कर नीचे देखा, मगर कुछ भी सुनने से कासिर रहा। उसने मुड़कर ज़ारा को देखा, जो मुख्तलिफ ज़ावियों से सेल्फियाँ ले रही थी। वो उसको अपनी जानिब देखता पाकर उसकी जानिब मतवज्जा हुई, मगर उसको मसलसल खुद को घूरता पाकर उसने अबरू उचकाए। क्या? कुछ नहीं। मुनीब हल्का सा मुस्कुराया। वो भी सर नीचे करके मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद दोनों ने सर उठाकर एक दूसरे को देखा और कहा लगाकर हंस दिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारी कहानी का इख्तिताम
इतनी जल्दी और इतना खुशगवार हुआ है, मुनीब मुतमईन से मुस्कुराते हुए बोला। जल्दी की तो खैर है, मगर खुशगवार का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भाभी की अभी तक ना तो कॉल आई है और ना ही कोई मैसेज। उसका एक ही मतलब है कि भांडा फूट चुका है। सो बी रेडी, क्योंकि नीचे तो बिला आखिर जाना ही है। ज़ारा ने उसका इत्मीनान गारद करते हुए कहा। फ़िक्र मत करो, मैं संभाल लूँगा। मुझे क्या ज़रूरत है फ़िक्र करने की। रेहाना खाला मेरी सबसे बड़ी हिमायती हैं। वो ना तो मुझे कुछ कहेंगी और ना ही किसी को कुछ कहने देंगी। तुम जूते खाने के लिए तैयार रहो, ज़ारा ने लापरवाही से कहा। जब प्यार किया तो डरना क्या, वो बाल सेट करते हुए तरंग से बोला। अरे खाला, आप कब आई? हम लोग बस आ ही रहे थे, ज़ारा ने मुनीब के पीछे देखते हुए कहा। तो वो झट से पलटा और अपने पीछे किसी को ना पाकर उसने गहरी सांस ली। क्या यार, तुम भी ना, डरा कर रख दिया। उसने मुंह पर हाथ रखकर हंसती हुई ज़ारा को खफगी से देखा। ओके बाय, मैं जा रही हूँ, वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोली। अरे रुको तो, गिफ्ट नहीं लोगी? मुनीब ने उसका हाथ पकड़ कर रोका। तुम गिफ्ट लाए हो? वो सारी की सारी उसकी जानिब घूम गई। बिल्कुल। उसके हाथ में ब्रेसलेट देखकर ज़ारा का मुंह खुला। तुम ये आर्टिफिशियल ब्रेसलेट मुझे निकाह का गिफ्ट देने के लिए लाए हो? है तो ये आर्टिफिशियल, मगर दुकानदार ने कहा था कि ये काला नहीं होगा, महंगा है ना, पूरे 5,000 का लिया है। वो उसके हाथ में पहनाते हुए फ़ख्र से बोला। कह तो ऐसे रहो जैसे 5 लाख का लिया है, ज़ारा ने मुंह बनाया। एक बार मेरी नौकरी लग जाने दो, 5 लाख का भी ले। बड़े बड़े बेवफा और दगाबाज देखें, मगर तुम दोनों ने हद कर दी। यूँ भी भला कोई बीच रास्ते किसी को छोड़ कर आता है, और वो भी 2-2 सांसों के दरमियान। साहिरा भाभी की आवाज़ पर उन दोनों ने मुड़कर देखा तो वो सीने पर हाथ बांधे चेहरे पर नाराज़गी सजाए खड़ी थी। सॉरी भाभी, मगर आप खुद सोचें, दूल्हा दुल्हन निकाह के फ़ौरन बाद मार खाते अच्छे लगते हैं क्या? मुनीब उनके पास आते हुए बोला। क्या खाला ने ज़्यादा डांटा? ज़ारा ने फ़िक्रमंदी से पूछा। दादी की वजह से बचत हो गई, वरना शामत ही आ चुकी थी। खैर नीचे आओ, दादी और अम्मा बुला रही हैं, हम लोग जा रहे हैं। आ जाओ मुनीब, ज़ारा ने उनके साथ जाते हुए मुनीब से कहा। तुम चलो, मैं आता हूँ, बल्कि मैं यहाँ छत से ही चला जाता हूँ। उसने कहने के साथ साथ अपने घर की साइड वाली सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए और उनके देखते ही देखते नीचे चला गया। उन दोनों ने ताज्जुब से उसकी पुश को देखते हुए एक दूसरे को देखा और नफ़ी में सर हिलाती नीचे चली गई। ख़त्म शुद। हाँ जी, तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे कल। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा बाय।